کہ بھائی آسمان زمین نہیں ہلے تیرے اندر کے ہلنے سے، تو یہ آیت کہاں جائے گی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ میں تغیر، جسے ورڈ یوزڈ ان دا قرآن از تغیر، کہ مغایرت پیدا کرتا ہوں، ایک چیز کو اس سے غیر کر دیتا ہوں، اس کی فطرت سے غیر کر دیتا ہوں۔ آگ کو ٹھنڈا کیا، کونوا بردوں وسلاما، پتھروں کو موم کر دیا، پہاڑوں کو روئی کر دیا، یہ اللہ کی پرانی سنت ہے کہ وہ فطرت میں مغایرت پائے، نیچرل ڈیزائن چینج کر دیتا ہے ایک چیز کا، جو اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے، گاڈ کے علاوہ کوئی اس پر امپاورڈ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے میں اتنا زیادہ بڑا میریکل کریٹ کر سکتا ہوں کہ میں اس چیز کی فطرت کے اندر اس کی فطرت کا اوریجنل ڈیزائن چینج کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی زندہ کو مردہ کر سکتا ہوں، مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں، اتنا ہی جب تک کہ تو اپنے نفس میں وہ مغایرت پیدا نہ کر، اپنے آپ سے اتنی علیحدگی اختیار نہ کر، اپنے نفس سے اتنا زیادہ انجان ہو جا، اتنا گمنام ہو جا اپنے آپ سے، اتنی دوری اپنا لے اپنے غلیظ نفس سے، میں اس کائنات کی فطرت بدل سکتا ہوں، تو اپنی فطرت بدل دے تھوڑی سی۔ ایک انسان بالکل صحیح فالو کر رہا ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اپنی ویلتھ بنا رہا ہوتا ہے، اپنی فیکٹری بنا رہا ہوتا ہے، اپنی فیملی بنا رہا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، بٹ دیر از سم تھنگ ان سائڈ ہم دیٹ از ہڈن، اور آخر میں اس کو رزلٹ نہیں ملتا۔ دنیا میں کوئی ڈیزاسٹر ہے نا، اس کے پیچھے ہم فلوک نہیں مان سکتے۔ ہم دونوں الگورتھم کھولیں گے، ہم اس کا روحانی اسپرچول الگورتھم بھی کھولیں گے جو ریلیجوسٹی اورینٹڈ ہے، ہم اس کا اسٹریٹجک پلاننگ اور اس کا میتھمیٹیکل الگورتھم بھی کھولیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی محسنوں کے اجروں کو ضائع نہیں کرتا۔ سو میں اس بات کو ماننے والا، کیونکہ ہم 14 سال کے بعد اللہ سے اولاد لے کے آئے ہیں، تو ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ اس میں ہمارا کوئی کرم ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اوپر کی آسمان کی کنڈی کھلی، اس کنڈی کے کھلنے کے پیچھے کسی کا کن موجود ہے، اس کن کے پیچھے کوئی ڈیریویٹو ہو سکتا ہے یا نہیں، ہم اس پر بات کریں گے کہ بھائی آسمان زمین نہیں ہلے تیرے اندر کے ہلنے سے، تو یہ آیت کہاں جائے گی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ میں تغیر، جسے ورڈ یوزڈ ان دا قرآن از تغیر، کہ مغایرت پیدا کرتا ہوں، ایک چیز کو اس سے غیر کر دیتا ہوں، اس کی فطرت سے غیر کر دیتا ہوں۔ آگ کو ٹھنڈا کیا، کونوا بردوں وسلاما، پتھروں کو موم کر دیا، پہاڑوں کو روئی کر دیا، یہ اللہ کی پرانی سنت ہے کہ وہ فطرت میں مغایرت پائے، نیچرل ڈیزائن چینج کر دیتا ہے ایک چیز کا، جو اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے، گاڈ کے علاوہ کوئی اس پر امپاورڈ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے میں اتنا زیادہ بڑا میریکل کریٹ کر سکتا ہوں کہ میں اس چیز کی فطرت کے اندر اس کی فطرت کا اوریجنل ڈیزائن چینج کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی زندہ کو مردہ کر سکتا ہوں، مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں، اتنا ہی جب تک کہ تو اپنے نفس میں وہ مغایرت پیدا نہ کر، اپنے آپ سے اتنی علیحدگی اختیار نہ کر، اپنے نفس سے اتنا زیادہ انجان ہو جا، اتنا گمنام ہو جا اپنے آپ سے، اتنی دوری اپنا لے اپنے غلیظ نفس سے، میں اس کائنات کی فطرت بدل سکتا ہوں، تو اپنی فطرت بدل دے تھوڑی سی۔ دس از دا لا ان دا قرآن۔ اور کانٹریری، ایک انسان سب کچھ بدل رہا ہے اور اندر کا آپ نہیں بدل رہا، اور وہ ہر لحاظ سے پہنچنے کے لیے بنا اس ڈیسٹنی کو، اور وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور اگر ایک اور رول بھی دیکھ لیں، اگر اس کی زندگی میں سب کچھ بدل رہا ہے اور اس کے اندر کا آپ نہیں بدل رہا، یہ عذاب ہے، یہ نہیں پہنچ پائے گا نا وہاں تک۔ اگر ایک آدمی کی زندگی میں پیسہ، دولت، شہرت، فیم، نام، طاقت، نیٹ ورک سب آ رہی ہے اور وہ اندر کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں آ رہی، تو یہ ڈھیل اس کی بربادی ہے۔ یہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اسپرچویلٹی، روحانیت میں، کہ اندر کا آپ نہیں بدل رہا مگر دنیا کے مفاتی اس کے لیے، اس کے دروازے کھل رہے ہیں ہر چیز کے لیے، یہ کلیئر ریڈ فلیگ ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا تھنگ کہ روح کے پروسیجر کے اندر جو ہے نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں نا بھائی انسیکیورٹی، آپ یہ چھوٹے مائکروز کو چھوڑ دیں، ایک تو اختتام کہاں ہوا، ایک ہے آیا کس طرح تھا، اور بیچ میں کیا کیا اس نے۔ کوئی مجھے پولیٹیشین آ رہا ہے مائنڈ میں۔ ایسی بات نہیں، اللہ نے روح کو ایک تو کانسٹنٹ، آپ نے بولا نا آیا کس طرح تھا، اختتام کیا ہوا، تو بہرحال ایک ہمیں یہ بات ہے کہ اللہ نے ہر روح کو پیدا کرنے میں کوئی باعث رکھا ہے؟ نہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی سب کو ایکول، عالم اربا میں ایوری باڈی واز ایکول، مطلب روح جو ہے اس دنیا کے اندر جو کلیجہ اور جگر لے کے آتا ہے، ہر انسان کے اندر جو بیسک انگریڈینٹس ہیں، بیسک آرٹیکل سب کے ہوئے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں میرے پاس ایموشنل ویپنز اس سے کم تھے یا میرے پاس انٹلیکچوئل آرسنل اس سے کم تھا، اگر کم بھی ہے زیادہ بھی ہے، کوئی کوئی دماغی لحاظ سے کمزور فلان امکان، لیکن یہ ایک تو یہ اللہ کی کریشن ہے کہ اس میں کسی فزیکل باڈی کی بات نہیں ہو رہی، انٹلیکچوئل، نفسیاتی، روحانی اندر کی دنیا کی بات ہو رہی۔ تو فرسٹ آف آل، اچھا کسی کا اگر کم زیادہ بھی ہے تو یہ سب پرون ٹو چینج ہے،
कुछ लोग स्किल के थ्रू उस लेवल तक आ सकते हैं, कुछ लोगों को गिफ्टेड मिले या जो भी हो। बहरहाल ये 12 साल इसको ना इस एनर्जी को 12 साल तक पालना पड़ता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, क्योंकि वो शुरू में अपनी फुल मैक्सिमम कमाल पे नहीं आई होती। सही। उसने स्पीड, ये वाहिद एनर्जी है रूह की जो 12 साल 11 साल के बाद अपनी पेस पकड़ती है। ये उससे पहले जिधर भी टकरा रही है बच्चों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की शक्ल में या दूसरी शक्ल के अंदर, दिस इज नॉट इट्स एक्चुअल जेनेथ ऑफ पीक। इसे 12 साल इसे चैनलाइज करना होता है। सही। कि ये वहां तक पहुंचे, उस उम्र तक पहुंचे तो उसका फियर जिस चीज से होना चाहिए और जिस चीज से नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर एंगल पे आ जाए। वहां पर इसने उम्मीद किससे रखनी है किससे नहीं रखनी है आ जाए। मॉन्स्टर कौन है, मॉन्स्टर का खौफ कितना होना चाहिए, कितना दलेरी कितनी होनी चाहिए, निडर कितना, ये इमोशनल बैलेंस, एंगर, लव, हेट, ये सारों को काम पे बड़ा काम कर, कहीं टोकना पड़ता है, कहीं रोकना पड़ता है, कहीं छोड़ना पड़ता है। ये जिम्मेदारी है पेरेंट्स की जो मेड्स और नैनीज नहीं कर सकती। सही। ये नाना नानी दादा दादी नहीं कर सकते, ये उसने करना होता है जिसने उसको जन्म दिया होता है। तो पहली बात ये, अगर इसमें मिस हैंडलिंग हुई है तो रूह अगर अपने 20s में और बालिग होने के बाद प्यूबर्टी की एज चाहिए, प्यूबर्टी की एज तक आपने हैंडल करनी है और फिर उस एनर्जी ने, उस रूह ने आगे अपने आप को खुद स्नोबॉल इफेक्ट में क्रिएट बड़ा करना है। अगर वो अपने साथ कॉम्प्लेक्सेस ला रही है, डर ला रही है, इनसिक्योरिटीज ला रही है और मटीरियलिज्म लेके आ रही है और हर जगह बाहर देखना ला रही है और अंदर देखना कम ला रही है और उसको एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक एग्जिबिट हिप्रेटस ही नहीं मिला सही जगह पे फलने फूलने का, तो उसने आगे भी पैकेज में गंद ही उठाना है। ठीक है। जल्दी इंटिमिडेट हो जाएगा, जल्दी इंप्रेस हो जाएगा, जल्दी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, जल्दी अपनी वैल्यूज लूज करेगा, जल्दी बिछ जाएगा, मरूब हो जाएगा, मगलूब हो जाएगा, जल्दी जहालत के अंडर आ जाएगा, जल्दी इग्नोरेंस के नीचे आ जाएगा, जल्दी डोमिनेट हो जाएगा। जो वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा वो वैक्यूम गंद को अट्रैक्ट करेगा, उसको कवर और इसमें हम हर कोई बैगेज लेके आ रहा होता है ना, हर कोई आ रहा होता है। अब ये ज्यादातर Nobody is perfect। और जब उसमें स्पाइक तब आती है जब कोई सिचुएशन क्रिएट होती है। तो जब कोई सिचुएशन क्रिएट होती है उसके भी 3 रीजंस हैं, या वो अल्लाह ने क्रिएट की है, या वो शैतान ने क्रिएट की है, या वो खुद ने क्रिएट की है। सिचुएशंस क्रिएटेड रहेंगी हमेशा से, अल्लाह भी सिचुएशंस क्रिएट करता है। अल्लाह की सिचुएशन क्रिएट करने की असल रीजन होती है कि इसके गुनाह झड़ जाएं, जो ये अंडर एक्सीलेंस है वो पूरी हो जाए, आखिरत के लिए कोई सामान आगे चला जाए, या इसको ट्रेन किया जाए कि ये मजीद अपनी उस एनर्जीज को और मजीद वाइडन अप करे अपने 20s में जाने के। सेटल हो रहा था, अल्लाह ने उसको होराइजन खोल दिया उसको। आप ये समझें कि ये सीने को, ये सीना असल है, लतीफ़ फिस सुदूर। कुरान ने ज्यादा जिस्म के हिस्सों पे कम और सीने पे ज्यादा बात की, अल-लतीफ़ फिस सुदूर। तो इसे कुरान ने औदिया के साथ तशबीह दी है कि वादी, अब वादी जितनी छोटी होगी पानी उतना कम उठाएगी वो। अंज़ला मिनस समा ईमान फसालत औदियतुम बिकदरिहा, जितना पानी नाजल होगा उतनी, जितनी वादी होगी उतना पानी वो उठाएगा, जितना कलेजा बड़ा होगा उतना स्ट्रेस प्रेशर वो उठाएगा, जितनी छाती चौड़ी होगी अंदर से रूह जितनी चौड़ी होगी उतना ज्यादा वो बड़ी सल्तनत और उतना ज्यादा वो कंट्रोल ले सकता है। और नॉर्मल जिस्म के साथ भी होता है कि आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो पहले वो उस बोझ पड़ता है तो वो बढ़ता है ना, मसल वरना नहीं बढ़ेगा। 2 चीजें हो गई, एक है कि आपने अंदर की मिकदार, आपने कितना पानी कंटेन करना है, कितनी पावर कंटेन करनी है, और दूसरा आपने छाती का साइज और वादी का साइज कैसे बढ़ाना है। तो कुछ लोग जो है ना पानी पे काम करते हैं वादी पे नहीं, और कुछ लोग वादी पे काम करते हैं और पानी पे नहीं, कुछ लोग कलेजे पे काम करते हैं मगर अंदर आने वाले जिगरे पर नहीं, दलेरी पर नहीं, इल्म पर नहीं, और कुछ लोग इल्म पर काम करते हैं मगर छाती चौड़ी नहीं होती तो उस इल्म ने अंदर जाके करना क्या है, छोटी बात। तो कुछ लोगों की बातें बड़ी हैं मगर छातियां चौड़ी हैं, छोटी हैं, और कुछ लोगों के जिगरे बड़े हैं मगर इल्म थोड़ा है, जानकारी थोड़ी है, शऊर थोड़ा है। तो बहुत बड़ा आदमी कभी कभी जहालत में अपनी बात कर जाता है, और बहुत बड़ा आलिम कभी कभी बहुत नीचपना दिखा जाता है। क्यों? दिल छोटा है उसका, मोदिया छोटी है। अब ये भी चलाने हैं बचपन से उसके एनर्जी सोर्स को मल्टीप्लाई इफेक्ट से बढ़ाना भी है कि उसकी रूहानियत के अंदर उम्मीद बड़ी कब होगी, जब छाती बड़ी होगी। गुस्सा ज्यादा, बड़ा गुस्सा बहुत पावरफुल चीज है और बहुत हसीन तख्लीक है अल्लाह की। गुस्से से ज्यादा हसीन तख्लीक कोई नहीं है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं गुस्सा इज एग्रेशन,
गुस्सा यार फिर गलत लफ्ज, गुस्सा एक फोर्स है. सही. Just like love is a force to create an action and instigate a lot of big processes. Okay. सबसे पावरफुल एक्शन गुस्सा क्रिएट कर सकता है. तो गजब को अगर प्रॉपरली चैनलाइज किया जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग ड्राइव इश्क और मोहब्बत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्राइव गुस्से की है. सही है. तो गुस्से की ड्राइव अगर सही डायरेक्शन में हो तो हुब्बुलिल्लाह बुग़्ज़ुलिल्लाह, इसलिए तो कहते हैं कि अगर अल्लाह के लिए गुस्सा है और जात के लिए नहीं तो उमर बिन खत्ताब बना देती है. वो पता नहीं क्या कुछ नहीं बन सकता आगे से. कुछ लोग जात के गुस्से की वजह से, ये जितना कुछ लोगों ने किया गुस्से में तो किया. ड्राइविंग फोर्स तो है. ड्राइविंग फोर्स मोहब्बत भी है, उम्मीद भी है, गजब भी है, नफरत भी बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है. लेकिन नफरत से भी बड़ी ड्राइविंग फोर्स गुस्सा है. अब गुस्से को हम ये नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी के अंदर गुस्सा ही खत्म हो जाए. ये कैसा इंसान है उसको गुस्सा ही नहीं आता. ये कहते हैं गुस्से के इजहार पे बात अलहदा होगी, गुस्से की तखलीक पर बात है. एक आदमी का गुस्सा भी खत्म कर दिया आपने, एक आदमी की मोहब्बत ही खत्म कर दी आपने, एक शख्स की उम्मीद ही खत्म कर दी आपने, या उसने खुद खत्म कर दी, या उसकी हरकतों की वजह से, या वो मैनेज नहीं हुआ. तो ऑब्वियसली दिस इज द हार्ट यू आर ब्रिंगिंग इन योर 20s and 30s. ये दिल लेके आ रहे हैं आप इन एनर्जीज के साथ. अब इसको कुरान की आयत और हदीस भी पढ़ा दो तो ये वो करेगा, उसके साथ नफ्स इस्तेमाल करेगा ना. क्योंकि अभी औदिया भी छोटा है. औदिया मीन्स यानी साइज भी छोटा है वादी का. अंदर पानी भी इल्म का, नूर का, और उसके अंदर शऊर और उसके अंदर डिसिप्लिन और स्टैंडर्ड भी कम है. और जो इस औदिया में जुड़ी हुई बेसिक रूट्स हैं जिससे वो क्रिएट हुआ हुआ है रूह की, जिसमें उम्मीद है, खौफ है, जिसमें वो भी टेंटिकल्स खराब हुए हैं उसके. इसको हम रिलेट कर सकते हैं ना, नया नया बच्चा दीन पे आता है, सबसे पहले फतवा लगाता जाके, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता उसको. हाँ. वो आता है और फौरन से फायर. ऑब्वियसली बात है. काफिर, ये भी बाहर. हाँ. जरा सा पैसा आया, औदिया है ही नहीं अंदर. दीन नहीं. अगर इस तरह की छाती को, इस तरह के औदिया को, इस तरह के कलेजे को, इस तरह की वादी को, वादी की भी मेंटेनेंस का एक अलग प्रिंसिपल है. नहीं, वो आप सक्सेस हैंडलिंग की बात करते हैं, नॉलेज हैंडलिंग की बात करते हैं. उसमें ज्यादा कुछ भी आ जाए, उसमें दीन ज्यादा आ जाए वादी में, या छाती में, या दिल में दीन ज्यादा आ जाए, या दुनिया ज्यादा आ जाए, करेगा वो फिर भी उल्टे काम. कैरी नहीं कर सकता. वादी मेंटेन नहीं है, या वादी छोटी है, या वादी डिस्क्रिपेंसी में डिस्ट्रैक्टेड है, डिस्टर्ब्ड है, डिसओरिएंटेड है, वेल मेंटेन्ड ही नहीं है, और उसका कोई उस्ताद ही नहीं है उस कलेजे का. तो वो जानता ही नहीं है कि कहीं बाय अल्लाह डिजाइन, या बाय इब्लीस डिजाइन, या बाय योर पर्सनल डिजाइन, वेदर इन द गुड और द रॉन्ग, अगर कोई भी चीज इसको सिचुएशनली सब्जेक्टिवली मिलती है वो बर्बाद कर देगा उसको. क्यों? और इब्लीस तो चाहते, सबसे ज्यादा ऑफर्स तो इब्लीस लेके आएगा ना. अच्छा, अल्लाह लेके आता है कि उसकी शऊर, इस सारी रूहानियत में सबसे पावरफुल चीज शऊर की आंख है, एहसास की आंख है, गिल्ट और रिग्रेट की आंख है. और ये दूसरी पार्टी सबसे पहले लेके आती है ख्वाहिशात की आंख, ख्वाहिशात की मांग, डिजायर्स की मांग, कि इसके अंदर अगर ये पड़ा रहा ना, इस छाती की दुनिया के अंदर, इस सीने की दुनिया में, तो वो शऊर की आंख बंद हो जाएगी. ऑफिशियली जो डिजाइन की जंग है ना, अल्लाह शऊर की आग का नाम है. अल्लाह का दीन शऊर की आग है, और इब्लीस का दीन शहवात की आग का नाम है. ये दोनों आग जो है ना, ये जंग का मैदान होता है, ये सीना 10-12 साल के बाद. और इसके बीच में एक अल्लाह ने एक और प्लेयर भी इंस्टिगेट किया, वो इंसान का अपना आप का नफ्स है. वलकद खलकनल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, कि उसको खुद भी सेल्फ जनरेशन कर सकता है. ये भी फ्री विल दी जो फरिश्ते के पास नहीं है, जो जिन के पास और हमारे पास है. कि अगर इब्लीस एक एग्जिबिट में सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा, और रहमान जो है वो भी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं, नफ्स खुद सिचुएशन क्रिएट कर लेगा. सही है. इसलिए यू आर नेवर आउट ऑफ सिचुएशंस. आप क्यों कहते हैं तन्हाई में बैठा हुआ है तो भी साथ है कोई उसके. अगर शैतान नहीं है तो उसके अपने आप बैठा हुआ उसके साथ. द बिगेस्ट बैड इन्फ्लुएंस यू हैव is your own self. The सबसे गंदा दोस्त आपका अपना आप है. You are the worst enemy, the worst friend, and the worst accomplice anybody can have. If you are not channelized, trained and grinded. And if you're channelized, you're the best friend of yours. तो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ही लीडर्स की ये रही है ना, जब दुनिया वो जेलों में लेकर गए काम, क्योंकि उन्हें लोगों की वैलिडेशन, अपने साथ जीना आता था, उन्हें लोगों की जरूरत नहीं थी, उन्हें अल्लाह के साथ और खुद के साथ जीना आता है. एंड दैट्स द हाईएस्ट लेवल जो इस कोर्स की बुनियाद होनी चाहिए, मास्टरी, सेल्फ मास्टरी की कोर्सेज के. द पावर, नॉट द आर्ट और द स्किल और द साइंस, द पावर टू लिव, the power to live with yourself and God in an isolation or in a crowd. इब्न तैमिया के जुमले याद आते हैं अब इसमें, कि क्राउड में भी आप उसके क्या कर लेंगे ये मेरा. हाँ, आप मुझे बंद कर देंगे, मार देंगे तो शहीद हूँ, जेल में डालेंगे तो थोड़ा प्राइवेट टाइम मिल जाएगा, जला वतन करेंगे तो I'll have the discovery of finding new things in life.
तो दिस इज द माइंड सेट. अब ये जो माइंड सेट प्रेजेंटली एग्जिस्ट करता है ना, जो अभी जो जेनजी आ रही है, जो अभी के जो जनरेशन, वो उसने सबसे पहला इस पे काम ये किया हुआ, इनके स्कूल्स ने, इनके पेरेंट्स ने, इनकी जनरेशन ने, ओवरऑल जितने भी एक्टर्स हैं इस पूरे इनकी लाइफ और साइकोलॉजी की कंट्रीब्यूशन के अंदर, भाई हमें पंगा ही नहीं चाहिए लाइफ में. अब इनको ये नहीं पता कि वो एनर्जी सोर्स जो औदिया और जो छाती बढ़ती है ना, वो पंगों से बहुत बढ़ती है. ठीक है. उसका साइज बढ़ने की साइंस, इनिशिएटिव से, चैलेंजेस से, उसके लिए सीने का साइज बढ़ाने के लिए, जनजी के लिए मैं पंगा वर्ड थोड़ा कर रहा था. ओके फाइन, आई विल. इनिशिएटिव्स, चैलेंजेस. जिगर का साइज बढ़ाने के लिए ना जंग चाहिए, और जंग के लिए ना 2 बंदे चाहिए, एक बंदा नहीं. तन्हाई एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो अच्छी होती है, मैक्रो ऑब्जेक्टिविटी कभी नहीं बन सकती लाइफ की. वो सारी जिंदगी हर एंगल से ही तन्हा हो इंसान, ये डिप्रेशन है, ये दलेरी नहीं है, ये बुजदली है, ये कायरी है. दिस इज being a coward. क्योंकि the moment you will come in an engagement with another human being, that is where the audia will get challenged. समझ लें, सोसाइटी जो है, that is where you will come in a different situation. ये सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स is actually your gym of spiritual harnessing. Spiritual muscle making comes when there is another human being, because that is where आप challenged होगे. चुभेगी उसकी बात, उसकी एग्जिस्टेंस चुभेगी, उसकी बातें चुभेंगी, उसकी हरकतें चुभेंगी, उसकी वजूद पूरा खल जाएगा आप, और उसको या वो कर देगा कुछ सामने वाला, या वो आपको एम्पावर करेगा, या आप उसे एम्पावर करोगे, या दोनों कॉम्प्लीमेंट करोगे, या दोनों भागोगे. इवेंचुअली ये इंसानियत की हार है कि उसने तन्हाई के अंदर जिंदगी में जिन्नात को, शैतान को, अपने बिगड़े हुए नफ्स को, मूवीज को, कैमरास को, डिजिटल वर्ल्ड को तो अपना यार और अपना कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया, मगर उसमें इतना जिगर नहीं था, इतनी हिम्मत, हौसला और उसकी इतनी इमोशनल अपब्रिंगिंग नहीं थी कि वो दूसरा इंसान बर्दाश्त कर सके. अभी शादियां भी नहीं कर रही लोग, वो जो भी इसका रिजल्ट आएगा, इनकी शादियां, इनकी तलाकें, इनकी कमिटमेंट्स, इनकी रिटेंशंस, इनका किसी भी सिस्टम में रहना, इसलिए फ्रीलांसिंग का इनका ज्यादा, क्योंकि अकेले कमरे में बैठ के पैसा कमाने का इश्क जो है, क्योंकि उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं हो रहा. ये और हुकूमत इन्वॉल्व होती तो भाग जाते मुल्क से. ये हर जगह ही भागने वाला एटीट्यूड लेके आएगी ना. और जिंदगी के ये जिंदगी अल्लाह ने फेस करने का, डिजिटल नोमैड्स, यू कैन से दैट. तो ठीक है, अब वो अगर आगे से कहते हैं ये इंसानियत के कलेक्टिव एग्जिस्टेंस के मुनकर हो जाएंगे आगे जाके. आई डोंट बिलीव इन बीइंग अ पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी. मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि मैं जंगल में जाके रहना चाहता हूँ. मेरी आज भी ड्रीम यही है, मैं एक पहाड़ पे जाऊँ. मैंने एक दफ़ा जिंदगी में एक पहाड़ मांगा था, हालांकि पैस्चर्स, पहाड़, रिवर्स, लेक्स और माउंटेन्स और ये सब कुछ प्राइवेटाइज नहीं हो सकता. ये कभी, ये इस्लाम के अंदर हमेशा स्टेट का होता है. मैंने एक दफ़ा नारायण में एक पहाड़ मांग लिया था अल्लाह से. इल्म पढ़ रहा था, मुझे इतना पता नहीं था. मैंने कहा अल्लाह एक पहाड़ दे दे मुझे, अपना ज़ाती पहाड़ हो मेरा, मैं जो चाहे करूँ उसके ऊपर. तो पहाड़ हो, आपके साथ आपका राइफल हो, आपके साथ आपके घोड़े हो, आपके साथ आपकी ज़िंदगी. और अब तो ऑफ ग्रिड लिविंग मसला ही कोई नहीं है, सोलर लगे. ये मैं 45 में कह रहा हूँ, ये मैं 45 में कह रहा हूँ, और 45 में अच्छा भी लग रहा हूँ. 40s में भी कहता हुआ अच्छा लगता हूँ, लेकिन मैं 20, 22, 25 की साल के अंदर कोई पहाड़ में नहीं रहना चाहता था. आई वॉन्टेड टू बी इन द वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्चुअलाइजेशन. मैं पहुंचना चाहता था कहीं. मैं ये जानना चाहता था कि मैं, ये सवाल, आज का सवाल, खतरनाक सवाल सबके लिए. एक है जिसने उठाया ही नहीं, दूसरा एक हार मान के भाग गया, तीसरा अपनी हार और अपने भगोड़ेपन को और अपने भागने को, somebody fleeing away from purpose of life, उसको फिलोसॉफिकली जस्टिफाई कर रहा है. तो इन पर भी मैं उफ़ी कर सकता हूँ. ठीक है, मैं जानना चाहता, क्योंकि इस प्रोसेस को इनिशिएट और एक्सिक्यूट करने के लिए ना, इसमें मिरेकल्स हैं, आएंगे, दोस्तियां हैं, आएंगे. पैकेज क्या है? रूह का असल सफर और मकसद के पैकेज में है क्या क्या, जिसकी वजह से इनको डरा दिया गया. डर गए हैं लोग, या डर गए या अंडर परफॉर्मेंस है. नंबर 1, इसमें दोस्ती आएंगी, +1 गुड, एवरीबॉडी लव्स इट. इसमें दुश्मनियां भी आएंगी, -1 नोबडी लाइक्स इट. इसमें तारीफ और प्रेज और बहुत फेम मिलेगा, बहुत एक्नॉलेजमेंट, मगर इसके अंदर बहुत तनकीद, बहुत तहकीर, बहुत तजलील भी आएगी. -1, इससे सबकी पूपू हो रही है. नंबर, इसके अंदर जो है वो मिरेकल्स, इसके अंदर मिरेकल्स भी आएंगे, इसको मिरेकल्स आएंगे, बहुत मिरेकल्स आएंगे, बड़ा प्यार और बहुत इंजॉयबल मिरेकल्स आएंगे, मगर इसमें मैथमेटिकल डाउट्स भी बहुत आएंगे.
इसमें अनसर्टेनिटी भी बहुत होगी, इसमें इस सफ़र में शक भी बहुत है रूह के, इसमें इनकार भी आएगा, इसमें इकरार भी आएगा, इसमें इर्तिफा भी आएगा, इसमें जवाल भी आएगा, इसमें दोनों चीज़ें चलेंगी इस हद तक के एक टाइम पर ये सारे पैटर्न्स अनलॉक होने के बाद वो सर्टेनिटी पे पहुंच जाएगा। अब हालात सर्टेनिटी पे पहुंचने के बाद हालात चाहे प्रो में हो या अगेंस्ट में हो, सर्टेनिटी इन इटसेल्फ इज वेरी मच एंजॉयबल। यकीन अपने अंदर एक, और इसमें कुछ भी बाहर से नहीं हुआ, सब अंदर से रिजॉल्व हुआ। बाहर की दुनिया का कंट्रोल तो है ही नहीं ना मेरे पास। सही है। मैं तो मेरे जब आप मिरेकल बेस्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं और आप एलॉगरिथम मैथमेटिकल बेस्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो ये जिंदगी ने कहीं रुकना है, कहीं अटकना है, कहीं फंसना है, कहीं डेड एंड और कहीं बहुत कुछ खोल देना है खजानों के अंदर। तो ये सारों के बीच में नफ्स, कुछ लोगों का 5 करोड़ पे खत्म हो जाता है, कुछ का 1 करोड़ पे खत्म हो जाए, कुछ का 5000 करोड़ पे भी नहीं रुकता, क्योंकि दे केप्ट गोइंग फॉरवर्ड। मगर हम एनालिसिस करके जरूर पूछेंगे भाई यहां तक पहुंचने में ये अब्दुल रहमान रहा, अब्दुल शैतान रहा, या अब्दुल अब्दी रहा, अब्दुल नफ्स बन गया। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि कुछ लोगों ने अनलॉक किया इस कायनात को। अब इलॉन मस्क ने अनलॉक करके ट्रिलियंस बनाए, मगर वो क्या बना है, क्या बना है एज अ ह्यूमन बीइंग? क्या वो एथियस्ट बना? क्या वो डाउटर बना? फैमिली मैन बना? क्या वो, मतलब देखना पड़ेगा ना कि कहां तक लेके गया वो उसको। तो इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप को हम कमाल पे इसलिए करते हैं कि 13 बीवी हैं, 13 बीवी हैं और 13 लाख दुश्मनी है, और फिर भी आपकी एक बैलेंस अप्रोच, वो दैट इज वेयर आई रियली लव हिम एंड वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम। जो माइकल हार्ट ने भी उनको ऊपर रखा और जीसस का और ईसा अलैहि सलाम को 6 नंबर पे रखा और गांधी को 3रे पे या 2रे पे रखा या 4थे पे रखा, इट्स बिकॉज आप उनके सारे डोमेन्स में उनका औदिया बहुत बड़ा है और सब में आपके अंदर से एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है। तो उस शख्स की एनर्जी को अल्लाह ने कितने साल संभाला, फिर उसने खुद उस हस्ती ने अपने आप को कितना संभाला, फिर उसने उसको ग्रो करने के लिए जो एग्जिबिट में नेगेटिविटीज थी उसका डर कैसे निकाला। आप सल्लल्लाहु की नबियों की दावत के अंदर थ्रेट थी, डेफिनेटली थी, प्रेशर था, डेफिनेटली था, नेसिंग थी, अल्टीमेट लेवल की थी, जलालत, तोहमतें, तहकीर, दुश्मनियां, हिजरतें, भूख, बायकॉट, क्या कुछ नहीं था। बट व्हाई डिड दे नॉट स्टॉप और एवर? हालांकि यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा चढ़ा कौम के ऊपर, ये कैसे बेशरम लोग हैं। मैं तो अनुदीन दी गल दसना, तुसी मछली का पेट आया फिर वहां पे ऊपर की तरफ से, क्योंकि तुम बुनियाद हो उस एक्चुअल एक्सीलेंस की जो मैं दुनिया में रखना चाहता हूँ, नबी, और तुम यहाँ पर, तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम्हारा इजहार सही नहीं है। अब तुम वहां जाओ अंदर, तो वो हजरत जी बैठे हुए ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह, वो तस्बीह चल रही है, द वर्ल्ड, अल्लाह इज शोइंग द वर्ल्ड कि मेरे टॉप नॉच लोग भी अगर मेरे उस ओरिजिनल डिजाइन के ऊपर कुछ आगे पीछे होगा, दिस इज हाउ द प्रोसेस वुड गो। आदम अलैहिस्सलाम को आसमानों में पूरी जन्नत दी, सारे ऑप्शंस दिए, एक हल्का सा टेस्ट रखा था क्यूरियोसिटी का कि मैं तुम्हें 99.9% नॉलेज दे रहा हूं विद ब्यूटी एंड एक्सीलेंस, ला तकरब हाज़िहि शजरा, इसके पास नहीं जाना। क्यूरियोसिटी के टेस्ट में आदम अलैहिस्सलाम डिड नॉट डू वेल एंड ही वेंट फॉर इट। अब उसमें इब्लीस की सिचुएशन भी क्रिएट करता थी, कुछ नफ्स की भी थी, तशनगी थी कि क्या रीजन हो सकता है, व्हाट कुड बी द रीजन। और यही सिचुएशन है ना कि मैं आपसे मुलाकात की, अभी किसी ने मुझसे मुलाकात की, मैं बहुत अच्छे तरीके से मिला, वो ये समझ बैठे कि मैं उनका 100% हो गया हूँ। मेरा अखलाक का मतलब, मेरे अच्छे अखलाक का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको दिल दे दिया। I will give you my heart after a trial, you know, but I will show good ethics to all of you. But does that mean अब आपकी क्यूरियोसिटी के क्यों नहीं पूरा मिला, तो इस पैकेज में सब्र है, इसमें इंतजार है, इसमें तन्हाई है, इसमें हालांकि बड़े लोग होते हैं, मतलब कि इतना कुछ एम्पायर होता है, कुछ बनाया हुआ होता है, लेकिन वही ना कहीं वीकेंड आपका होता है जो निकल आता है। तो यहीं से आज की